Hopefully, everyone is doing well. We are with the target of understanding of rules regarding bank reconciliation statement. Few rules we have already discussed, like balances and different errors we have searched and understood, like error of omission, error of commission, double error. We have already discussed. Then we have discuss few rules regarding expenses. If expenses are deducted without any intimation from the bank, what would we do? And if bank has collected any sort of income on behalf of customer but intimation is not given to the customer, तो तब आप क्या करेंगे? So these were the rules we have already discussed, and now we will proceed to the next. Again, it's rule, and what you will see written on your book, check which, और चेक इशूड ही डायरेक्ट लिख देते हैं, चेक इशूड. अब इसकी पहले जनरल एंट्री बनाएं. व्हेन यू विल इशू योर चेक, टू होम यू विल इशू. The point is, if you are drawing your check, if you are going to issue a check, to whom you will issue this check? The person would be your account payable, the person would be creditor. So you will issue your check to the person to whom amount was payable. As you will issue your check, it means you have paid to your creditor, you have paid to your account payable. It means he is no more your liability, he is no more your account payable, he is no more your creditor. Decrease in liability means debit. So you will write name of your account payable on debit side. And since you have issued a check, what will happen when this check would be transferred to your account payable or the person to whom amount was payable? That creditor will present the same check to your bank, with which he will withdraw amount from your bank account. Amount present in bank would be decreased. Bank is your asset. Due to decrease in bank account, your asset would be decreased. Decrease in asset should be credited. That is why you will mention name of bank on credit side. So what we are saying, check issued. चेक किसको इशू करते हैं? चेक इशू टू क्रेडिटर. आपने किया. अब आगे इसकी एक्चुअल जो जर्नल एंट्री होती है वो अकाउंट पेबल टू बैंक है. दोबारा समझिए, चेक इशू टू क्रेडिटर, दैट मीन्स क्रेडिटर या अकाउंट पेबल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. क्रेडिटर और या फिर आप अकाउंट पेबल लिख दें, दोनों बातें सेम है. आपने क्रेडिटर को चेक इशू किया और उसने जाके आपके बैंक से पैसे निकलवा लिए. एंड इफ़ ही विल बी ड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम योर बैंक, अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी डिक्रीज्ड. दिस वे यू आर क्रेडिटिंग योर बैंक. इसी बात को अब आपने कोहेरेंट करना है इसके साथ जो अब हम आगे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड, इफ़ यू विल इशू योर चेक टू क्रेडिटर, द जनरल एंट्री वुड बी क्रेडिटर टू बैंक, और बैंकों का क्या करना था? क्रेडिट. ओके, अब प्रॉब्लम समझिए आगे क्या हुआ. ये वर्ड आपको क्वेश्चन में मिला करेगा, बट. यू हैव इशूड योर चेक टू क्रेडिटर बट दैट चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड. बट चेक ऐसे लिखा होगा, चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक. आपने अपनी तरफ से चेक इशू कर दिया, बट ड्यू टू एनी रीज़न दैट चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक अकाउंट. अब ये कैसे हो सकता है कि इफ़ यू हैव इशूड अ चेक टू योर क्रेडिटर और वो बैंक में ही ना जाए? तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो बैंक में जाए ही ना और चेक आपने उसको दे दिया हो? तो यस, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल. क्या हुआ? यू हैव इशूड योर चेक टू द क्रेडिटर, मे बी इट वॉज 4 o'clock or near about 5. Creditor tried to go to the bank, but due to time issue he was unable to reach in time and check was not presented. ये भी reason हो सकती है. और suddenly he had received a call for his any personal issue. He decided to tackle personal issue instead of going to the bank. Again, check would not be presented. Let's say he was going to bank, but let's say, just giving you an example, due to any accident, due to any mishap, he tried but he was unable to reach to the bank in time. Check was unpresented. Let's say you have provided your check to the creditor, but that check was damaged, deteriorated,
or damaged due to not carrying that check properly. Obviously, if check is not in its original or real position, or the creditor will present that damaged check to the bank, तो इट वुड नॉट बी ऑनर्ड, इट वुड नॉट बी इनकैश्ड. कोई भी रीज़न हो सकती है. हो सकता है कि वो सो गया, उसको टाइम ना मिला हो, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ तक नहीं पहुँच सका. अगर वो 5 बज गए और वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका, तो देर आर सेवरल रीज़न विद विच यू विल डिसाइड दैट चेक इज़ नॉट प्रेजेंटेड. अब आपने तो सोचा था कि क्रेडिटर हैव गॉन टू द बैंक एंड ही हैड विदड्रॉन अमाउंट फ्रॉम माई बैंक अकाउंट. तो आपने सोचा मेरे बैंक अकाउंट में कमी हो गई होगी, बट चेक is not presented to the bank. It means amount is not drawn from your bank account and amount is not decreased in your bank account while you have understood that amount has been decreased. So there will be a difference of balance understood by the customer and difference understood by the banker. आप as a customer would consider that amount in the bank has been decreased while in actual अमाउंट प्रेजेंट इन बैंक हैज़ नॉट बीन डिक्रीज. तो देर इज़ डिसएग्रीमेंट. बैंक रिकॉन्सिलेशन को हम बोलते ही क्या है कि देर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर. ये हमने शायद पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ था कि इनके दरमियान में एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है. दोनों बंदे अपनी अपनी बात को ठीक तरह से बता नहीं रहे थे. ये मैं ढूंढ रहा था लाइन. तो देर इज़ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर. यहाँ पे भी वही बात हुई है. अकॉर्डिंग टू कस्टमर अमाउंट शुड बी डिक्रीज, बट अकॉर्डिंग टू बैंक अमाउंट हैज़ नॉट बीन डिक्रीज. देखें, अगर पाकिस्तान होगा और अगर आपका अकाउंट है, आप सोच रहे थे कि अकाउंट में अमाउंट कम हो गई होगी, लेकिन बैंकर ने जवाब दिया कि अमाउंट कम नहीं हुई, तो आप तो खुश होंगे. नॉर्मली, नॉट पर्टिकुलरली आप, तो लोग खुश होंगे, ठीक है बैंक में अमाउंट नहीं कम हुई. मगर अगर इफ़ द कस्टमर वुड बी honest, what his response would be if he had issued a check to creditor, he will assume that creditor would have gone to the bank and amount has been decreased. So according to him balance would be decreased, but bank is informing that balance has not been decreased. तो इन दोनों मैटर्स को फिर कैसे टैकल करेंगे आप? आपने तो चेक इशू किया था और बैंक में कमी कर दी थी, लेकिन एक्चुअली अगर ये आपको फील हो कि चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, आपने ख्याल किस चीज़ का रखना है इस पूरी लाइन के अंदर. अगर आपको वर्ड मिल रहा है नॉट प्रेजेंटेड या अनप्रेजेंटेड, इसको हम इटैलिक कर देते हैं और बोल्ड भी है. ये नॉट प्रेजेंटेड के वर्ड को आपने देखना. अगर क्वेश्चन में ऐसा है तो अब आप मुझे बताइए इस गलती को आप कैसे ठीक करेंगे. फिर कस्टमर को समझाया जाएगा कि भाई योर क्रेडिटर हैज़ नॉट अराइव्ड एट बैंक एंड ही हैज़ नॉट प्रेजेंटेड हिज चेक टू द बैंकर, दैट इज़ वाई योर अमाउंट हैज़ नॉट बीन डिक्रीज. कस्टमर समझ जाएगा जैसे ही उसे पता चलेगा. तो अब जो ये बैंक को क्रेडिट किया हुआ है वो इसको ठीक करना है. अभी क्रेडिट किया हुआ पता चलेगा कि वो बैंक में गया ही नहीं, तो फिर दोबारा इसको आप डेबिट फॉर्म के अंदर लिख देंगे और डेबिट में लिखने का ही एक मेन रूल हम फाइनलाइज कर रहे हैं कि किसको हमने डेबिट करना है और किसको हमने क्रेडिट करना है. ऊपर से सारे रूल्स चेक करते आए. आपने हमेशा डेबिट क्रेडिट ही लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट. अब भी आपने डेबिट क्रेडिट ही लिखा हुआ है. ऑलराइट, अब थोड़ी सी बात आपने और भी समझनी है. रूल हमारा फाइनल हो गया कि इफ़ इट इज़ रिटर्न चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड, तो आपने उसे डेबिट करना है. रूल फाइनल हो गया. लेकिन यहाँ पे आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, इशूड का तो मेन वर्ड हो गया, लेकिन इशूड अगर लिखा होगा तो वो उसके साथ कुछ और वर्डिंग्स भी हो सकती हैं. चेक इशूड या लिखा होगा ड्रॉन, पेड टू कस्टमर. ओके, ये दोनों नाम यूज़ हो सकते हैं, इशूड, ड्रॉन या पेड टू कस्टमर. बात एक ही है. और दूसरी बात आपने ये समझनी है कि अन जो नॉट प्रेजेंटेड आपने वर्ड लिखा हुआ है, ये भी अलग अलग वर्ड्स के साथ अपीयर हो सकता है. और अलग अलग वर्ड्स क्या होंगे? जैसे नॉट प्रेजेंटेड है तो अनप्रेजेंटेड ये भी लिखा हो सकता है. नॉट कैश्ड भी लिखा हो सकता है, अनकैश्ड भी लिखा हो सकता है, रिटर्न्ड भी लिखा हो सकता है, डिसऑनर भी लिखा हो सकता है. ये सारी वर्डिंग यूज़ हो सकती है और इन सारी वर्डिंग्स का मतलब एक ही बनता है कि आपने समझना है कि वो नॉट प्रेजेंटेड है.
वो प्रेजेंट नहीं हो सके चेक। इन सारी लाइंस का ये मतलब है। अच्छा, अब आप समझ लग गई है आपको। मैंने आपसे कहा है कि इफ़ देर इज़ इशूड तो उसके भी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, और अगर इसके साथ फ़र्ज़ करें कि आपको नॉट प्रेजेंटेड लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसके भी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। और आपने ख्याल रखना है कि अगर ये वर्ड ना आए नॉट प्रेजेंटेड तो उसकी जगह ये वाले वर्ड्स भी आप यूज़ कर लीजिएगा। कि रूल ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, मैंने नंबर लगा दिए हैं ताकि आपको ख्याल रहे कि ये 10 रूल्स हो गए हैं। अब उसके बाद 11 रूल है, और ये अगर रूल्स आप फॉलो कर लेंगे तो बिलीव मी आप रिकॉन्सिलेशन का कोई सा भी क्वेश्चन बिना डिस्कस किए भी कंप्लीट कर सकते हैं। 11 में अब नेक्स्ट है, वी हैव डिपॉजिटेड अ चेक। चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसकी पहले जनरल एंट्री बनाएं। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपने चेक बैंक से बैंक में डिपॉजिट किया तो व्हाट विल हैपन, अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी इंक्रीज्ड। बैंक इज़ योर एसेट, इट मीन्स एसेट इज इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, सो यू वर सपोज टू डेबिट बैंक अकाउंट। अब दूसरी बात यह है कि फ्रॉम whom you have received this check. Obviously the person was debtor or the person was account receivable from whom amount was receivable. Instead of amount you have received a check from him. As you will receive your check, it means he is no more your debtor, no more your account receivable. In other meanings, he is no more your asset. Asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. So you will name your debtor on credit side, or you will write account receivable on your credit side. ये एक्चुअली एंट्री बनती है अगर आपने चेक रिसीव किया था डेटर से। अब यहाँ पर बैंक क्या हो रहा है, डेबिट। तो अब यही समझना है आपने बैंक को डेबिट किया हुआ है। अब आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और पिछले रूल की तरह यहाँ पर भी यूज़ होगा बट रिटर्न लिख सकता है, डिसऑनर लिख सकता है। इस तरह के वर्ड वो यूज़ करेगा, जिससे आपने समझ लेना है कि अब जब चेक डिपॉजिट किया हुआ था उससे मिलने चाहिए थे पैसे, लेकिन पैसे आपको नहीं मिले इवन आफ्टर डिपॉजिटिंग द चेक। अब गौर से देखिए, चेक आपने डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो इट वाज अ मस्ट डू थिंग दैट योर अमाउंट प्रेजेंट इन बैंक अकाउंट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड। लेकिन बैंक ने कहा कि पैसे मैंने आपको नहीं देने, उसने वो चेक की रिटर्न कर दिया या वो डिसऑनर कर दिया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो जाहिर है कि फिर यूँ होगा, यू हैव रिसीव चेक फ्रॉम योर डेटर एंड द डेटर was not having sufficient amount in his funds when you had presented that check to his bank. तो बैंक ने कहा नहीं भाई, इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो दैट चेक कैन बी रिटर्न्ड और दैट चेक कैन बी डिसऑनर्ड। अब आप मेरी बात गौर से समझिएगा, थोड़ी सी बात समझानी है। वो ये है कि आप हैं कस्टमर, तो कस्टमर तो बैंक को डेबिट करेगा, और मैंने आपसे ये बात कही थी कि बिल्कुल ऑपोजिट करता है बैंक। अगर कस्टमर ने यहाँ पर बैंक को डेबिट किया हुआ तो बैंक को कस्टमर के नाम को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट। अब बैंक चूंकि वो चेक गलत निकल आया और बैंक कह रहा है कि मैंने आपके नाम को क्रेडिट नहीं करना, तो एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ हो सकता है और उस वर्ड को बोलेंगे अनक्रेडिटेड। अब मुझे ये समझाइए ज़रा कि चेक आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में, बैंक को आपने डेबिट किया हुआ था, लेकिन बैंकर ने समझाया कि द चेक वॉज फेक, signatures were wrong, check was damaged, amount in words is not matched to the amount in numbers. Due to any reason, bank had negated to provided you the amount of check, और बैंक had dishonored that check. तो आपने जो ये बैंक को डेबिट किया हुआ है, क्या वो ठीक डेबिट किया हुआ है? At the time of depositing that check into the bank, you were very happy that your amount present in your bank account would be increased, but the check which was provided was fake, or amount was not present, or due to any reason now bank has informed you that amount is not being deposited into your bank account. So it means you are at your mistake, as you will be informed that check was fake. तो जो ये इजाफा किया हुआ है, इस इजाफे को फिर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। जब इजाफा किया था तो यू हैव डेबिटेड योर बैंक अकाउंट, अब इस इजाफे को ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करके उस गलत इजाफे को आप ख़त्म कर दोगे। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट रिटर्न्ड डिसऑनर और अनक्रेडिटेड, तो उसको आपने क्रेडिट करना है।
अच्छा, अब मैं साथ साथ आपको ये भी चीज़ बताता जाऊँ कि अगर डिपॉजिट का वर्ड लिखा हुआ है तो इस डिपॉजिट के साथ साथ कुछ वर्ड्स और भी लिखे हो सकते हैं, तो आपने मैनेज करना है उन वर्ड्स को समझने के लिए। अगर चेक डिपॉजिटेड लिखा हुआ है तो ओके, अब डिपॉजिटेड लिखा हुआ है तो उसके साथ जो वर्ड यूज़ हो सकते हैं, पेड इन भी हो सकता है। चेक डिपॉजिटेड, पेड इन, और जो नीचे लिखा हुआ है रिटर्न्ड, इसके साथ क्या वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक के अंदर डिफरेंट वर्डिंग यूज़ होंगी। ऊपर कुछ वर्ड्स तो मैंने लिख दिए हैं, डिसऑनर हो सकता है, रिटर्न्ड वैसे लिखा हुआ है, और नॉट क्रेडिटेड हो सकता है या अनक्रेडिटेड हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। ओके, ये सारे नाम आपने अच्छी तरह से समझ के रखने हैं, क्योंकि बुक में कुछ वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं इसके साथ। अच्छा, अब ख्याल आपने इस बात का रखना है कि ये रूल्स अगर फॉलो होंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब ये रूल्स आप फॉलो करते जाइएगा, 11 रूल्स हो गए। ये आपने लाइन कैसे याद करनी है, मैं आपसे अगर पूछूं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने क्या करना है, डेबिट। फिर मैं आपसे पूछूं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, आपने क्या करना है, क्रेडिट। ये रूल्स हैं, इसी तरह से इनको आपने साथ साथ याद करते रहना। और राइट जी, अब मैं ना कलेक्टिवली इनको ओवरव्यू करने लगा हूँ। ओवरव्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको बस ये आप याद रखना है कि आपने जो वर्ड मैं बोलूँगा उन वर्ड्स को अपनी मेंटालिटी के अंदर, मेमोरी के अंदर फिक्स कर लेना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट द बैलेंस। इफ़ इन योर क्वेश्चन इट हैज़ बिन रिटन बैलेंस एज पर कैश बुक, व्हाट यू विल डू, डेबिट। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्रॉन, डू क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट। And next rules are associated with the errors. Error of omission, undercast. अंडरकास्ट होगा तो व्हाट यू विल डू, अगर डेबिट है तो डू डेबिट, अगर क्रेडिट है तो डू क्रेडिट। ओवरकास्ट में अगर डेबिट है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट है तो डेबिट करना है। अब ये डबल एरर है, और वो डबल एरर पहले आपने अच्छी तरह से समझना होता क्या है। डेबिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट या क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट, that means you were supposed to write amount on debit side but you haven't written, instead of debit side you have written the amount on credit side। तो इसको डबल एरर बोलना है। और ये कैसे ठीक होगा, डबल अमाउंट ऑन ओरिजिनल साइड। जैसे डेबिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, इंस्टेड का मतलब बजाय, तो असल जगह कौन सी हुई, क्रेडिट, और क्रेडिट में जाके आपने डबल अमाउंट लिख लेनी है। ओके, फिर आगे एक्सपेंसेस है। इफ़ एक्सपेंसेस हैज़ बीन डिडक्टेड बाय द बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग कस्टमर, तो यू विल क्रेडिट योर बैंक अकाउंट। और इनकम विच इज़ कलेक्टेड बाय द बैंक एंड हैवंट इन्फॉर्म्ड द कस्टमर, तो इट मीन्स योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन इंक्रीज, डेबिट। चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड, डेबिट। और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, उसे क्रेडिट कर देना आपने। ये हैं 11 रूल्स। एंड व्हाट यू विल डू, यहाँ पर रुक के इस जगह पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, यहाँ वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 11 रूल्स हैं, फिर उसी को नोट कीजिएगा, बार बार लिखिएगा, और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आपने रिकॉन्सिलेशन समझनी है। अब होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ रुक के स्क्रीनशॉट ले लें। 11 रूल्स हैं, डेबिट, क्रेडिट एंड सिंपल, बस इनको याद कर लीजिएगा और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज विलिंग टू लेट यू नो। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल मीट अगेन। अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्रे फॉर मी एज वेल। होपफुली वी विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।